ناظرین، لائن آف کنٹرول پونچھ کے دیہات سیر مدارپر کے مقام پر ایک سوشل ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی ڈاکٹر محمد لیاقت MS تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال ہزیرہ تھے۔ ساتھ میں خصوصی شرکت چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر راجہ امتیاز احمد اور برطانیہ سے آئے ہوئے سوشل ورکر محمد ممتاز احمد نے کی۔ تقریب میں معززین علاقہ کی بڑی تعداد شریک تھی۔ تقریب کے پہلے سیشن میں معزز مہمان گرامی نے الہدایہ اسکول کے بچوں کی سرگرمیوں کو سراہا اور والدین اور اساتذہ کو یہ تلقین کی کہ ایک بچے کو آپ پروفیشنل تعلیم کے ساتھ ساتھ ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم بھی دیں۔ جبکہ دوسرے سیشن میں ایک فری ڈسپینسری کا افتتاح ڈاکٹر محمد لیاقت نے کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں یونیورسل ویوز کی یہ رپورٹ۔ اگر آپ گریڈ 19 کا آفیسر ہوں یا آپ کا ڈاکٹر امتیاز ون آف دا بیسٹ چائلڈ اسپیشلسٹ ان ایریا کے، تو یہیں سے پڑھ کے گئے کہ انگلینڈ سے یا اسلام آباد سے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ ایک فلائی ادارہ بھی چلا رہے ہیں، اور یہ بڑا کام ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، کبھی کبھی 5 روپے ایک بندہ دیتا ہے نا، وہ بھی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لوگوں کو اس طرف لائیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پورا بڑا علاقہ ہے، یہاں پہ بڑے اچھے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیبلش بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم فضول خرچی جو کرتے ہیں نا مختلف چیزوں پہ، بس سگریٹ پیتے ہیں ہم، وہ 200-300 روپے کے ہم پیک کو لیتے ہیں، لیکن وہ ہماری عادت ہے۔ لیکن ہماری اگر ہم ایک دن یہ سوچ لیں گے اس میں سے 50 روپے آج کسی یتیم بچے کے لیے فکس کر دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں 10 روپے 20 روپے ایسے اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے رکھتے ہیں جو واقعی ڈیزرو کرتا ہے۔ کبھی کبھی ہم نان ڈیزرونگ کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم پولیٹیشین کو ان کے الیکشن کے لیے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کو گاڑیاں کر کے دے دیتے ہیں، لیکن ان کا فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اپنے گاؤں کے اس یتیم بچے کو اٹھائیں، اپنے گاؤں کے اس غریب بندے کو اٹھائیں، اس کی پہلے میں اپنے جو اسٹاف اسکول کا اسٹاف ہے، ٹیچر ہے میری، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کے ساتھ بہت اچھی محنت کی ہے، جس کا رزلٹ آج بچوں نے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ڈاکٹر صاحب کہ میں نے یہ اپنے طور پہ یہ پروگرام اسٹارٹ کیا اسکول کا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے یہ وہ بچے ہیں جن کے ہماری کوئی ہائی اسٹینڈرڈ سکول میں پڑھنے کے قابل نہیں تھے، یہ اچھے سکول میں پڑھنے کے قابل نہیں تھے، تو میں نے ان بچوں کو یہاں پہ ٹیچرس کے ساتھ مل کے یہ تیاری کروائی ہے، اور الحمدللہ میں ہر بچے کو اسٹیج پر بولنے کا موقع دیتا ہوں۔ بے شک وہ آ کر اپنا صرف تعارف بھی کروائے، لیکن وہ لازمی اسٹیج پہ آئے گا۔ تو میں تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں، بچوں کا جنہوں نے بہت اچھا پرفارمنس کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا اگین میں آپ سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں آج یہاں پہ آ کر ہم سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، نہ صرف میری حوصلہ افزائی اسکول کے بچوں کی بلکہ اعلیان صحت اور یونین صحت کو کوٹا کی آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے اور ہمیں شکریہ کا موقع دیا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ اسی طرح شان و چلیں گے اور ہر اسٹیج کے اوپر ہر سمت میں آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں اسپیشلی امتیاز صاحب، انہوں نے کچھ میڈیسن ہمیں پرووائڈ کی ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ ڈاکٹر فرید صاحب جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں ہزیرہ، وہ یہاں پہ موجود نہیں ہیں، انہوں نے بھی ہمیں کوئی میڈیسن بھیجی ہے۔ تو آج یہ خوش بختی ہے ہماری عوامی علاقہ یونین کونسل صحت کو کوٹا کی کہ انہیں ہر ایور یہاں پہ ایک 24 گھنٹے فری ڈسپینسری کا امکان ہوا ہے اور لوگوں کو ایک سہولت میسر ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کوئی اتنے دور رہنے والے نہیں ہیں، یہ آواز پر ہمارے پاس ہی آپ رہتے ہیں، واٹر کی بڑی ناگفتہ صورت حال ہے، نہ کوئی یہاں پہ ایمرجنسی ہے۔ پر وقت آپ دیکھیں BHQ سینٹر ہمارا سیٹیوٹ اور اس کے بعد فرسٹ ایڈ وہ سیر پہ آ جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی میں آپ کو اس سے پہلے اپریشیٹ بھی کروں گا کہ آپ نے تحصیل ہزیرہ کے نظم و ضبط کو بہت اچھا چلا رہے ہیں آپ، اور اس وقت تک کوئی کمپلین نہیں آئی ہے۔ ہمارے پیشنٹس بھی جاتے ہیں جن کو وہاں پہ اگر آپ کے بس میں ہو تو آپ ان کو سروائیول ان کو کرواتے ہیں وہاں پہ، نہیں تو آپ ایمبولینس کے ذریعے ان کو آگے بھیج دیتے ہیں۔
तो आपका बड़ा अच्छा रवैया है वहाँ पे, और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा यहाँ पे हमारी खिदमत के लिए DSO हजीरा ही रहें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं नदीम अंजम आज सेल मुदारकर के मकाम पर मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ की एक पॉलिटिकल और सोशल शख्सियत मौजूद हैं। जनाब इफ्तार अवान साहब मुख्तलिफ हवाले से यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते हैं। आज उन्होंने एक बड़ी मुनफरिद एक्टिविटीज़ यहाँ पे जनरेट की है और फ्री डिस्पेंसरी के हवाले से है, और मैं इनको वेलकम कहता हूँ और इनसे ये पूछना चाहूँगा कि जो एक्टिविटीज़ आज आपने स्टार्ट की है इस हवाले से हमें थोड़ा सा ब्रीफ करें कि यहाँ पे चूँकि मेडिकल के हवाले से यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे हमने एक फैसिलिटी अवेयर की है, तो इस हवाले से हमें बताएं कि ये क्या एक्टिविटीज़ है और इस हवाले से लोगों को यहाँ पे क्या सहूलियात आप फराहम कर रहे हैं। जी खान साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और इस पर नदीम साहब ये इस तरह है कि ये अंसारुल इंसान एक फाउंडेशन है जिसके प्लेटफॉर्म से मैं बात कर रहा हूँ। मुझे इसकी नाम की हद तक NOC भी मिल चुकी हुई है और मेरे 3 प्रोजेक्ट हैं। ये एक हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन और तीसरा इस पर डेवलपमेंट का है। सर दस्त हेल्थ और इस पर एजुकेशन पे भी मैं पहले 2 साल से काम कर रहा हूँ। और ये जो फाउंडेशन है ये हमारी बॉर्डर के स्पेसिफिकली मतलब है बॉर्डर के हवाले से। यहाँ पे आप यहाँ के सारे रहने वाले लोग हैं, आपको पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एम्बुलेंस नहीं है और हेल्थ का इतना बड़ा फुकदान है। यहाँ पे कोई वर्कशॉप वगैरह उस तरह से नहीं है, कोई बाकी नहीं है जिसमें हमें कोई फैसिलिटेट हो सके हमारे लोग। तो उस लिहाज से मैंने ये इनिशिएटिव लिया है और इसमें मेरे साथ डॉक्टर हजरात ने मेरे साथ काम भी किया है और ये आज पहला दिन है इसका और हम इससे स्टार्ट कर रहे हैं। आज इफ्तिताह है उसका। मैं उसमें स्पेशली मशहूर हूँ MS हजीरा डॉक्टर जफर साहब का और इम्तियाज़ साहब चाहे स्पेशलिस्ट हैं, उनकी साथों से ये अद्वियात भी मिली हैं और इंशाअल्लाह मज़ीद ये एक अल्लाह ताला ने अगर हमें तौफीक दी तो ये एक मुस्बत कदम होने की वजह से आने वाले लोगों को इसमें बड़ी हमें। अच्छा, नाम से तो ये फ्री डिस्पेंसरी है, तो यहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ होंगी, कौन से डॉक्टर्स यहाँ पे बैठा करेंगे और इसका क्या शेड्यूल होगा, एक वीक के अंदर होगा या डेली के बेसिस पे होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने नदीम साहब। इसका ये होगा कि एक तो हमें डॉक्टर साहब ने इम्तियाज़ साहब ने एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट उन्होंने हमें 1 मंथ उन्होंने महीने के हर एंड पे उन्होंने एक दिन दिया हमें। 2 बजे के बाद तकरीबन वो हमारे पास आएंगे, बैठेंगे। अगर 50 मरीज़ भी है, जब तक वो मरीज़ एंड नहीं होता वो यहाँ से नहीं जाएंगे, उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया। मज़ीद में इनकी मौजूदगी में MS साहब की मौजूदगी में इनसे मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ अपनी स्पीच में, अभी फिर दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि ये इनकी फ़्राइज़ में भी आ रहा है और मैं रिक्वेस्ट हूँ कि वहाँ में इलाका की ज़रूरत भी है यहाँ पे कि ये मज़ीद हमें डॉक्टर यहाँ पे महीने में 3-4 डॉक्टर मज़ीद हमें यहाँ पे प्रोवाइड करें ताकि हम लोग उससे, क्योंकि महंगाई का दौर जा रहा है, बड़ा मुश्किल है लोगों का मतलब है सर्वाइव करना। जी बहुत शुक्रिया। जी हमारे साथ इस वक्त MS तहसील हजीरा हॉस्पिटल डॉक्टर जाकिर साहब मौजूद हैं। आज उन्होंने यहाँ पे इफ्ताह किया फ्री डिस्पेंसरी के हवाले से, इनको हम वेलकम कहते हैं। और आज की जो एक्टिविटीज़ है इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ, बड़ा नोबल ये
फ्री डिस्पेंसरी का जो काम इधर में अमल में लाया है। मेरे साथ डॉक्टर इम्तियाज़ साहब ने चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने केस दिया, तो हम बाकी भी आपस में बैठ कर प्लान करेंगे कि किसने कौन से दिन जाना है, क्योंकि आपको पता है कुछ लोग हमारे यहाँ डॉक्टर लगे हुए थे, वो लोग छोड़ के चले गए, जैसे आपका बटन था बटोल, तो अभी न्यू अपॉइंटमेंट हो नहीं रही है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी कैबिनेट में गई, जैसे ये सारी चीज़ें हमने ये सारी वैकेंसी जो वैकेंसी भेजी हुई है उनको इस पर अपॉइंटमेंट हो गया, मुख्तलिफ डॉक्टर अभी क्योंकि शॉर्टेज है, अभी इस महीने में ये पॉसिबिलिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और यहाँ पे MS हैं, तो आपको ज़ाहिर आइडिया है कि काफ़ी सारे मसाइल हैं, तो एक हॉस्पिटल में चूँकि इस तरह की सहूलियात जो है वो दस्तियाब नहीं हो सकती, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? शायद सरबत लोग हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ वो सोसाइटी के अंदर जनरेट करें तो यहाँ की जो बीमारियाँ हैं, यहाँ के जो मसाइल हैं लोगों के, जो गरीब लोग हैं उस तरह की उनके पास नहीं होता, फाइनेंशियली उस तरह की सहूलियत नहीं होती, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे ऐसे लोगों को? बेसिकली यहाँ पे जो हमारे आज़ाद कश्मीर है या पहाड़ी इलाका, यहाँ पे ज़्यादा जो डिजीज़ हैं वो वाटर बार्न है, जैसे टाइफाइड आप ये वाटर बार्न है, जैसे डायरिया आपका वॉमिटिंग है, ये सारा वाटर बार्न है, और यहाँ कॉमन डिजीज़ भी यही हैं। तो इसके लिए बेहतरीन जो काम है ना प्रिवेंशन, कि आप परहेज़ किन चीज़ों की करनी, इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला है, बॉयल वाटर। आप पानी चश्मे से लाते हैं उसको बॉयल कर, जैसे अभी बारिशों का सीज़न है, डेफिनेटली आपके चश्मे ओपन है, तो सारी गंदगी उन चश्मों में जा रही है, पानी गंदा हो रहा है, उसी वजह से टाइफाइड होगा, डायरिया होगा, हैज़ा होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। आप इतना पेट की मैक्सिमम हमारे लोगों में कॉमन डिजीज़ यही है। हार्ट अटैक तो वो तो किसी फैमिली में रन करता है ना, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं वो ज़्यादा यही है, कॉमन वाटर बार्न। तो इसको तो हम सिर्फ एक बॉयल वाटर घर में लकड़ी लगाई, एक पतीला गर्म किया, सुबह बॉयल वाटर पिए, इससे आप बहुत सारी बीमारियों से, ये सारी बीमारियाँ आपकी टाइफाइड हो गई, तो ये चीज़ें को भी बचा जा सकता है। दूसरी बात ये है कि देखें आपका ये PHU है, इसमें भी डॉक्टर साहब आती हैं, स्टाफ भी मौजूद है, ठीक है। जो इमरजेंसी होती है ना जैसे आप मैंने अभी अंदर भी डिस्कस किया स्नेक बाइट, ठीक है, अभी सीजन आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों से कोई भी लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट तो देता ही है। जो इफ्तार साहब ने एक्टिविटी स्टार्ट की, इस हवाले से मेरा क्वेश्चन है कि इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे सोसाइटीज के अंदर होनी चाहिए, सारे सरबत लोग हैं यहाँ पे जी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या रिक्वेस्ट? जितने साहिब सरबत लोग हैं ऐसे नोबल काज को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ हम एक तरफ नहीं दे सकते, गवर्नमेंट हर चीज़ करके देगी। दुनिया के किसी मुल्क में भी आप इंग्लैंड में भी चले, वहाँ भी म्यूचुअल कॉपरेशन चलता है, पब्लिक भी कॉपरेट करती है, गवर्नमेंट भी कॉपरेट करती है, तब इदारे भी तभी चलते हैं। तो यहाँ पे जितने हमारे लोग हैं इंग्लैंड में या सुबेर में या जो अच्छे पोस्टों पे हैं या जिनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं, उनको ऐसे लोगों से कॉपरेट करने के छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब हैं, शायद उनके पास किताबों के पैसे नहीं, तो हम सब ने मिल के इसको ऊपर उठाना है। चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इम्तियाज़ साहब भी मौजूद हैं, अफ्तार साहब ने एक्टिविटी यहाँ पे स्टार्ट की है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? और बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मेरा डॉक्टर इम्तियाज़, मेरा तो किसी गाँव मदारपुर से है, तो इधर में मुझे 20 साल हो गए हैं तकरीबन प्रैक्टिस में आए हुए। तो यहाँ पे हमने 5-6 साल पहले भी एक क्लास क्लिनिक चलाया, तो ये जो अफ्तार साहब की एक्टिविटी है इसमें इनकी हमारे साथ मुशावरत भी हुई है, आपने कुछ मेडिसिन भी इनको प्रोवाइड कराई है। तो मेरा ज़ाती ये पहले से एक मिशन है कि लोगों को कम्यूनिटी सतह पे घर की दहलीज पे जितनी सहूलत पहुँचा सके जाए, तो मैंने इब्तदाई तौर पर इस सिलसिले में इनको एक महीने में 1 दिन दोपहर के बाद देने का फैसला किया। तो ये जो है आपके चैनल की वजह से मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात हमारे डॉक्टर लियाकत साहब ने बात की है, ये जो सांप के काटने के वाक़यात हो रहे हैं और उसमें डेथ्स हो रही हैं और बहुत सारी बातें उस पर मतलब होती हैं, कुछ सच्ची भी होती हैं, कुछ ज़्यादातर गलतफहमी पे भी मबनी होती हैं। तो मेरा पैगाम ये है कि मेरी स्पेशलिटी जो बच्चों में जो काटते हैं तो सांप काटते हैं तो बच्चों में बहुत जल्दी ज़्यादा फैल जाता है, बड़ों में फिर भी थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारे लोग ये करेंगे हजीरा की तहसील के जो 80% इलाके हैं उनकी 1 घंटा से कम ड्राइव है हजीरा के अस्पताल से। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि सांप के काटने का जिस वक्त भी वाक़ा हो पहले आप पहुंच जाएं अस्पताल में, वैक्सीन लगवा लें, उसके बाद आप जो है पीर साहब के पास जाते हैं, जहाँ भी ले जाते हैं हमारा कोई इतराज़ नहीं है, पहले उसकी वैक्सीनेशन शुरू हो जाए, मेडिकल असेसमेंट हो जाए, तो जितना जल्दी होगी इतना रिजल्ट अच्छा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, ये जो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इंग्लैंड UK से आया हूँ और उधर भी ये काम होते हैं अक्सर, लेकिन इधर बहुत गरीब इलाका है और तहे दिल से मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसे इलाके में इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है।
और जो बाहर लोग के यूके और दूसरे मुल्कों में, उनको भी चाहिए कि इनसे मिलकर और ये गरीबों में ये काम करें और अल्लाह ताला इनको अजर दे। और ये बहुत इफ्तिखार साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। एक कतरा भी हो, किसी की मदद हो, वो भी अल्लाह के काम बहुत अजमत रखता है। तो मैं ये सब दरख्वास्त करूँगा, जो भी मोमिन मुसलमान जहाँ भी हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए इधर अपना कंट्रीब्यूशन करें और इधर अपना स्वाब लेने हासिल करें। तो आप एक मोतबर शख्सियत हैं हाजी मोहम्मद अब्बास साहब, तो मैं इनसे ये सवाल करूँगा कि ये जो एक्टिविटीज स्टार्ट हुई हैं, तो इस हवाले से जो आपके क्या ख्यालात हैं? नदीम साहब, आपके चैनल के हिसाब से मेरा पैगाम ये है, कम अज़ कम वो कहते हैं कि डूबते को तिनके का शिकार, तो कम अज़ कम जो मरीज खासकर किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है या लो होता है या कुछ छोटी मोटी बीमारी होती है जो पेशेंट हजीरा नहीं जा सकता है, तो इस ट्रस्ट कायम करने से ये है कि गरीब आवाम को बहुत बड़ी सहूलत यहाँ मुयसर होगी। कम अज़ कम उसको फर्स्ट एड मिलेगा और फर्स्ट रिलीफ उसको मिलेगा, उसके बाद फिर आगे हॉस्पिटल में पहुँच जाएगा। मैं सुन रहा हूँ कि जिन आदमियों ने इफ्तिखार साहब ने स्पेशली और ख़ासकर MS हजीरा आए हैं, डॉक्टर इम्तियाज़ साहब यहाँ आए, इन्होंने हौसला अफजाई की है और आवाम इलाका के लिए मैं समझता हूँ कि इस पसमानगी के दौर में, तरक्की याफ्ता दौर में पसमानगी जातियों में बहुत ज़्यादा है, तो आवाम की वेलफेयर के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, इंशाअल्लाह ताउन भी करेंगे। अच्छा, क्योंकि साहिब सरवत लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस तरह की एक्टिविटी जो है वो हमारे माशरे के लिए सूदमंद होती है, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे साहिब सरवत लोगों को? साहिब सरवत लोगों से मेरी यही गुजारिश है, और जैसे वो कहते हैं कि दिन दुगनी रात दुगनी, तो अपने जो है ना बजट से जो है ना आप इन लोगों की मदद फरमाएं, जिससे ताकि गरीब की ज़िंदगी बदल सके। अमीर आदमी तो हर जगह अपना ट्रीटमेंट करा सकता है, लेकिन गरीब का कोई परेशान हाल नहीं है। जब तक गरीब अस्पताल में पहुंचता है उसका काम हो जाता है। तो साहिब सरवत लोगों से यही अपील है कि वो इस वेलफेयर ट्रस्ट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आवाम इलाका जो है और पसमानदा लोग जो है उससे मुस्तफीद हो सके। इस वक्त सिकंदर अली कमर साहब मौजूद हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, तारिफ के मुताल नहीं हैं, तो आज चूँकि यहाँ पे मौजूद है, फ्री डिस्पेंसरी का इफ्तिताह हुआ है, तो मैं सिकंदर साहब से गुफ्तगू करने का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो यहाँ पे इफ्तिखार साहब ने एक अच्छी इफ्तिताह की है, तो इस हवाले से आपका क्या पैगाम है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो नदीम साहब हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, उसके बाद हमारे MS सरदार लियाकत साहब जो यहाँ पे शिरकत की है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे क्लास फेलो हैं डॉक्टर इम्तियाज़ साहब, तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नदीम साहब इससे पहले तफसीलन मेरे ख्याल में आ रही है, आपने महरूमी का जिक्र किया है, जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि BHU 33 नोट के बाद हमें शेर के मुकाम पर फर्स्ट एड है और उसके बाद हमें THQ हजीरा जाना पड़ता है। जिस तरह इफ्तिखार साहब ने जिक्र किया है कि आज की इस महंगाई में लोगों को अफोर्ड करना खासा मुश्किल है। मैं आज खुद अभी हजीरा जा रहा था, मेरा आपको भी पता है कि बच्चा बीमार था, तो मैंने इम्तियाज़ साहब से रब्ता किया, तो मैंने इसी में अफियत समझी कि अगर वो मुझे करीब ही मुयसर हो गए, तो इस तरह के सारे लोगों की तकरीबन महरूमियाँ हैं, महकूमियाँ हैं, बेबसियाँ हैं, लाचारगियाँ आप कह सकते हैं। तो इस यानी कि ऐद में अगर इफ्तिखार साहब ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है, और भी बहुत सारे ट्रस्ट हैं, 33 नोट सोशल ट्रस्ट है, और खिदमत वाले हैं, मुस्लिम हैंड्स वाले हैं, तो हम सारे लोगों को इस तरह के जो भी ट्रस्ट काम कर रहे हैं उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और मैं सारे वकील हज़रात जो हैं उनसे ये कहूँगा कि ये बड़ा ज़रूरी इक़दाम है और इसमें हमें बढ़ चढ़ के अगर हम रियासत पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो मेरे ख्याल में पिछले ज़लज़ले में बना था हमारा 33 नोट का BHU, वो आज तक फंक्शनल ना हो सका। इसी तरह CMH में जो सारी मशीनरी पड़ी हुई है वो हमारी रियासत के जो हुक्मरान हैं उसको प्रॉपरली वो फंक्शनल नहीं कर सकें। THQ में भी यहाँ डॉक्टर इम्तियाज़ साहब MS साहब मौजूद हैं, तो बहुत सारी वहाँ भी कमियाँ कोताहियाँ हैं, तो हम सारे लोगों ने उन कमियों कोताहियों पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और अगर इस तरह जो मुखीर हज़रात हैं उनको तावन करके हमारे जो पंडित हैं, जो जिस तरह MS साहब ने जिक्र किया है, हमारे जो बच्चे माशाअल्लाह जो कहते हैं ना, नदीम साहब के लाल जो होते हैं वो गोदड़ियों में ही होते हैं,
तो बाज़ औक़ात बच्चों के पास टैलेंट होता है और उनके वालिदैन के पास उस तरह के वसाइल न होने की वजह से हम उस टैलेंट से भी महरूम हो जाते हैं। तो मैं सारे जो लोग हैं, हमारे जो रिश्ते नाते वाले लोग हैं, मैं भी उनसे खुसूसन ये गुजारिश भी करूँगा, इल्तमास भी करूँगा कि इस तरह के जो माशरे में काम है वही माशरे को आगे लेकर फिर एक अच्छा माशरा तश्कील होता है। तो मैं एक दफ़ा फिर खुसूसन आपका जो TV चैनल है और खुसूसन आपका भी जो कंट्रीब्यूशन होता है कि जहाँ भी कोई एक्टिविटी होती है उसमें आप सारे लोग पेश होते हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ कि सारे लोग इफ्तिखार साहब के साथ भी तावन करें, तेजरी नोट जो सोशल ट्रस्ट काम कर रहा है उनके साथ भी तावन करें, अल खिदमत वाले हैं उनके साथ भी तावन करें, मुस्लिम एंड्स वाले हैं उनके साथ, और हम सारी कम्युनिटी को अब हुकूमत पे डिपेंडेंट अगर रहेंगे तो हम इसी तरह महरूमियों का शिकार रहेंगे। तो हमें अपनी मदद आपके तहत इस तरह के काम करने भी चाहिए, खुद भी करने चाहिए, और अगर कोई खुद नहीं कर रहे तो अगर कोई कर रहा है तो कम अज़ कम उसके साथ तावन करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।